Welcome everybody. So now we are starting this particular webinar. Now, as you all know, that this particular webinar would be covering the minute strategies, very minute details, technical analysis on when you trade in the markets, how you can effectively make money in the markets, and what are the mistakes a retail trader makes while trading in the markets. Now, the basic objective of taking this particular webinar was that we felt that despite every research, every advice available to the client, they make mistake in the implementation of the trading strategies. Now, although the trading strategies are not very complex in nature, but then too, the investors, the traders need some hand holding while they trade in the markets. A very raw figure which states that not more than 2-3% of the retail traders still make money in the markets. So there are still many retail traders who lose in this particular market and who want to make money in the market but are not able to make sufficient money in the markets. So without any delay, let us move on to the core content of this particular webinar. We also request that everybody be attentive in the webinar. And if you have any questions, please note it down. At the end of the webinar session, we'll be doing an interactive Q&A session where you can write in your questions and send to us. We'll be more than happy to answer any and every question of the participants. So please note down your questions when the webinar is going on. We'll be putting up the forum, the question and answer forum after the webinar is done. So Epic Learning Center, what is this all about, the Epic Learning Center? Now, Epic Learning Center is a education and training company, is a training body started by Epic Research. This is a very new initiative, but we highly felt that this initiative has to be taken more, more often than now. So we started this Epic Learning Center. Now, Epic Learning Center is a company which is a subsidiary of Epic Research. This company is purely into investor education and training initiatives. Now we do webinars pan India. We do webinars for some stock broking companies, for clients, for sub brokers, and we educate them on a timely basis that how you should trade in the markets. We do an all India seminar thing. So if everybody, if you have a group of more than 50 or 100, and if you want us to do a seminar, you can mail it to learning@epicresearch.co. We have a student training wing wherein we believe that we should train the students in the financial markets at this stage. So we have tie-up with many colleges, we visit the colleges, we give seminars, we give career counseling to the students. So anybody who wants a seminar in their colleges also can mail it to us. We do seminar for corporate employees. We have tie-up with many companies, pan-India companies, multinational companies, India-based companies. We go to those companies, we do seminars, and we talk to the clients, talk to the employees at how they can manage their money, how they can do the financial planning, retirement planning, tax planning. So all these stuffs we do at the corporates. We also do corporate meets where we do a personal financial planning, personal counseling session for the employees of a company on how they can effectively trade in the financial markets. We run an email series wherein on a very regular basis we update our clients on the regular movements in the gold, Nifty, currency, macroeconomic factors, the current account deficit, the quantitative easing, all those major factors. We also have a social media presence. We have a page on Facebook, sb.com/Epic Learning Center. You can get that URL via our website also. So we are basically into the whole 360-degree learning perspective of the financial market. Now let us come to the core of this particular webinar as to what I'll be covering in this particular webinar for now. Firstly, we'll be saying that what is the need of the investor education. Do we really need investor education or not? We'll be asking some questions from you that what is your trading style, how do you trade in the markets, how to use a stop loss, how to diversify your capital when you are trading,
some very important market data, technical analysis, and we'll be taking your queries. Now, why do we exactly need investor education? Almost 95% of the traders in the markets, they lose money. Only 5% intelligent investors make money in the market today. So remember, it's a zero-sum game. If 95% clients are losing money, only 5% of the clients are exactly making that particular money. So if I have long a Nifty future at 5600 and the Nifty falls to 5400, I'm making a loss of 200 rupees per Nifty. On the counter side, someone is making 200 rupees profit of my 200 rupees loss. So if I'm losing some money, someone in the market is making. It's a zero-sum game. There is no leakage, no shrinkage in the market. If I'm losing money, somebody else is gaining. So why isn't that I am on the gaining side or a retail investor is on the gaining side? This is a very essential question you have to ask from yourselves. There are many clients, many traders we come across in our daily lives who are trading from 15 years, 10 years, they are trading into the markets. They don't know why they are trading. They have not made money in the markets. They are still hoping that one day they'll make money in the markets. The basic flaw is not in the knowledge they have. They have huge knowledge, maybe more than a research analyst in the market. But the basic flaw they have is that they don't know the strategy to trade in the markets. Currently, only less than 3% of the Indians are currently exposed to the direct equity markets. There is still scope. In USA, 44% of the total saving of the country per year goes to the direct equity exposure. In India, 57% of the money saved every year is still kept in the saving account with a mere return of 4%. So still, and most of us listening this particular webinar keep our money in the saving account. We do not say that put all your money into equity markets, but there are many instruments. Let's say there is a beautiful instrument known as a balanced fund, balanced mutual fund, or a debt mutual fund, or a gilt fund, or a fixed maturity plan, 13-month, 26-month fixed maturity plan, wherein you gain more than your saving account, and you have a double indexation taxation benefit. So if in a saving account you get more than 5,000 or 10,000, whatever is the limit, TDS is being deducted. But in the FMP, TDS is only deducted on an indexed basis. So you save huge money there. So in India, there is let's say if we take an average inflation rate of 7% and your saving bank account gives you a return of only 4%. So you are getting a negative return on 3% on your capital. So something which cost 100 rupees today would be worth 107 1 year from now. And your money 100 rupees kept in the saving account would be only worth 104 rupees. Let me explain this in Hindi also. आज मैंने 100 रुपए बैंक में रखे हैं, बैंक मुझे 4% ब्याज पे कर रहा है. एक साल बाद वो 100 रुपए का वैल्यू हो जाएगा 104 और इन्फ्लेशन है 107. तो अगर कोई चीज एक साल बाद 107 की हो जाएगी बट मेरा पैसा सिर्फ 104 रुपए हुआ, तो अभी भी मेरा पैसा जो ग्रो हुआ वो -3% की ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ अगर मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर इन्वेस्टर को, हर ट्रेडर को ये जानना कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें. आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 35 एज है, 30 एज है, 40 एज है आपकी, आप किस गोल की तरफ आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. आइडियली आपके सेविंग अकाउंट में आपको 6 महीने से ज्यादा या 4 महीने से ज्यादा का आपका खर्चा नहीं रखना चाहिए. उसके ऊपर का आपका जो भी खर्चा रखा हुआ है, जो भी अमाउंट रखा है सेविंग अकाउंट में, आप उसको इन्वेस्ट करते चलिए. जरूरी नहीं है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, आप जाकर के उसको डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप जाकर के उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जाकर के उसको एक बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो बहुत सारी जगह है जहां पे आप जाकर के उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को. नाउ as you can see in the next slide, I hope everybody is seeing the person who is looking at the market with his mouth open wide. With all due respect, most of you are in this particular scenario.
I see most of you in this particular scene. Whenever market falls, you feel like this. If the market rises, again you are like this. मार्केट बढ़े चाहे गिरे, हमेशा क्यों लॉस हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर को? हमेशा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से खो के ही निकलता है. जैसे ये इंसान यहाँ पे एक्साइटमेंट में डर के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया. शायद आप में से भी कई लोग ऐसे ही मार्केट को देखते होंगे. रुपी गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नुकसान में है. सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जूझना चाहिए और सारी चीजों को करके समझना चाहिए. तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैसा खोता है, इसीलिए एजुकेशन की जरूरत है मार्केट में. नाउ जो अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड यू आर सीइंग, दिस इज व्हाट द रिटेल इन्वेस्टर डज. दिस इज द निफ्टी स्लाइड, निफ्टी चार्ट. जब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जब टॉप पे होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर तभी उसको खरीदता है, एकदम टॉप पे. अगर टॉप बनता है तो आप देख के चलिए ये उसी रिटेल इन्वेस्टर का बना होगा जिसने 1 या 2 शेयर खरीदे या 5 या 10 शेयर खरीदे. कभी भी 25,000 10,000 पे टॉप कभी नहीं बनता है. ये हमेशा आप किसी भी शेयर में उठा के देख लीजिए. और वो बेचारा बेचता तभी है जब शेयर बाजार गिरा हुआ होता है. वेट करता रहता है, बिल्कुल करता रहता है, जैसे कि बिल्कुल मार्केट डबल हो जाएगा. स्टॉप लॉस नाम की चीज वो समझता नहीं है रिटेल ट्रेडर. वो बेचारा तभी बेचता है जब बाजार बढ़ना चालू होता है, और वो बेचता है और वहीं से बाजार बढ़ता है. आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ एक ना एक बार तो लाइफ में ये चीज हुई होगी. आई एम वेरी श्योर ऑन दैट. ऐसा क्यों है कि जब बाजार बढ़ रहा है तभी आप बेच के निकल जाते हैं, जब बाजार गिरता है तभी आप एंटर होते हैं? ऐसा क्या है आप? खैर, इसको कोई मास्टर नहीं कर सकता है, बट तरीके होते हैं. देयर इज टेक्निकल एनालिसिस जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं. देखते हैं हम आगे सेमिनार में हमारे कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं. आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें, इन क्वेश्चंस को, फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि क्या हर आदमी मार्केट में पैसा खोता है? देखते हैं, हाँ भी ना भी. क्या मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ लक के ऊपर डिपेंड करता है? क्या आप सिर्फ लक के थ्रू ही पैसा कमा सकते हैं? क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है? क्या रिटेल ट्रेडर लंबे समय तक पैसा कमा सकता है और पैसा कमाते रह सकता है? क्या स्टॉप लॉस नाम की चीज कुछ होती है और क्या वो रियली वर्क करती है? एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी क्या होती है? लेट अस आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार. सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या रिटेल ट्रेडर हमेशा पैसा खोता है? क्या गिरते मार्केट में कभी पैसा कमाया नहीं जा सकता है? सबसे बड़ा आंसर उसका भी आपके सामने है. आप यहां पे देख रहे हैं, हमने एक चार्ट बनाया निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का. एक जगह पे जहां पे निफ्टी गिर रहा है वहां पे डॉलर बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा हो रहा है. तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ट्रेड करें. आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं. अगर आपको निफ्टी में आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जाके डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं. तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज गिरेगी एंड वाइस वर्सा. सो ऑलवेज इन द मार्केट्स देयर इज अ अपॉर्चुनिटी समवेयर अवेटिंग, और उसको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, मार्केट को ट्रैक करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है उस चीज को ढूंढ पाना. सो लक हमेशा काम करे जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, इन चीजों की जरूरत है. अच्छी एडवाइस की आपको जरूरत है. आप यहाँ पे बहुत सिंपल चार्ट मैंने टीसीएस का पुटअप किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है हमने, जो एक लाइन है जिससे कि डबल बॉटम, डबल टॉप ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं. सिंपल सी चीज है, यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट किया है,
कुछ 1600 रुपए के आसपास शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। अब जब शेयर ने ब्रेकआउट किया तो एक सिंपल सा लॉजिक बोलता है कि अगर शेयर ब्रेकआउट कर रहा है, आपका मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव है, तो आप जाकर के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल था यहाँ पे जहां पे कि आपका डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ। दूसरा था आपने पहले ही देख लिया, आपका मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हो गया। तीसरा आपने देखा आपका मूविंग एवरेज भी ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। तो ये सिंपल सा तरीका है किसी शेयर को बाय या सेल करने का। स्टॉप लॉस रख के काम करिए, मूविंग एवरेज को आपका स्टॉप लॉस बना के चलिए। दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी इन दी मार्केट्स। रिस्क रिटर्न रेशियो क्या होता है, रिस्क रिटर्न एपेटाइट क्या होता है? आइडियली हम बोलते हैं कि आपको 1 रुपए खोने के और 3 रुपए पाने के। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है कि योर ट्रेडिंग स्टाइल शुड ऑलवेज हैव फर्स्ट अ रिस्क रिटर्न पैरिटी। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड करे जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या है आपको नहीं मालूम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टॉप लॉस को संभाल के रखें, पहचान के रखें। 1:3 का आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक मार्केट में होना चाहिए। नाउ अगेन हम एक और चार्ट देख रहे हैं। जैसे आपके सामने एक चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। यहां पे इस चार्ट में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस जगह पे आप देखिए कि आपका जो शेयर है वो इस काउंटर ने आपका डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आपका किया है, विच मीन्स दैट ये एक बाइंग सिग्नल यहां पे जनरेट होता है। अब ये काउंटर बढ़ते जा रहा है, आपका 14 डे मूविंग एवरेज और 35 डे मूविंग एवरेज भी बढ़ते जा रहा है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपने यहाँ पे इस काउंटर को बाय किया, आप अलग अलग जगहों पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए। मार्केट गिरा, आपने स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ, फिर आपने बाय किया, आप इसको प्रॉफिट बुक करते जाइए एंड देन आप आगे जाकर के देख सकते हैं यहाँ पे जबकि एक 14 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, वहां पे आप जाकर के पूरा प्रॉफिट आपका बुक कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आपका पूरा शेयर एक साथ सेल करें, आप अपने शेयर को पार्ट पोर्टफोलियो में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको जाकर के सेल कर सकते हैं मार्केट में। सो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 शेयर खरीदे हैं, 1,000 शेयर खरीदे, हर पॉइंट पे, हर रेजिस्टेंस पॉइंट पे आप जाकर के 200 200 200 या 300 200 500 ऐसे शेयर करके आप सेल कर सकते हैं। कीप बुकिंग प्रॉफिट एट एवरी लेवल। यहां पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे आपने देखा कि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर आया, सो यहाँ पे आप कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके एंड एग्जिट हो सकते हैं। सो यहाँ पे दिस इज आई एम यूजिंग अ सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक। I am not using any advanced technique. I am not using anything which is very advanced. I am using a simple moving average technique here. So एक रिटेल ट्रेडर अगर बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखे तो he can make money in the markets. किसी को भी कोई बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें आप सीख के भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लीवरेजिंग का। लीवरेजिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कम पैसे हैं और आप ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने ब्रोकर से फाइट करके 20 टाइम्स लिमिट ले ली। फाइट वर्ड यहाँ पे इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ब्रोकर की रिस्क होती है। एक क्लाइंट ब्रोकर को बार बार बोलता है सर आप लिमिट बढ़ा के दीजिए, हमें लिमिट बढ़ा के दीजिए, आप लिमिट ही नहीं बढ़ा रहे हैं। लिमिट बढ़ गई, क्लाइंट बहुत खुश, जैसे उसको प्रॉफिट मिल गया है। फिर लिमिट बढ़ने में और प्रॉफिट मिलने में बहुत ज्यादा अंतर है। सो client has to clearly understand that leverage is always a two-faced sword. आपको दोनों तरफ से वो काट सकता है, प्रॉफिट भी हाई है, लॉस भी आपका बहुत हाई है। लीवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, बट ये है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें और प्रॉपर टेक्निक के साथ आप इसमें ट्रेडिंग करते जाएं, तो लीवरेज बहुत काम में आएगा आपके। नेक्स्ट चार्ट एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। बहुत लोगों ने आप में से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। जब NSEL का आया था मार्केट में कि इट वाज अबाउट टू डिफॉल्ट ऑन दी पेमेंट्स,
आप इस पर्टिकुलर जगह पे देख सकते हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, परफेक्ट डबल बॉटम। एक ये बॉटम यहां पे बन रहा है, एक सेकंड बॉटम यहां पे बन रहा है। एक टेक्निकल एनालिस्ट है, एक ट्रेडर है जिसने आपके जैसे वेबिनार अटेंड किया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वेबिनार अटेंड करके कि आज हमने सर से बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, अब हम तो बिल्कुल अब टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे। और जा करके अगले दिन उसने फाइनेंशियल 1 लाख रुपए उसके पास पड़े, उसने बोला आज तो टेक्निकल एनालिसिस में तो कभी लॉस होता ही नहीं है। 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए उसने टेक्निकल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया डबल बॉटम देख करके। कुछ 550 रुपए के लेवल पे था उस समय फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगले दिन न्यूज आई कि साहब NSEL डिफॉल्ट हो गया, शेयर गिर के धड़ाम से 200 रुपए आ गया। उसकी कैपिटल 80% 70% साफ हो गई, पूरी कैपिटल साफ हो गई उसकी 70% एक दिन में। अब उसने सोचा कि क्या टेक्निकल एनालिसिस गलत है? नहीं, टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत लोग यूज करते हैं, वो तो गलत होना मुश्किल है। कहां वो मिस कर गया? द मेजर पॉइंट इज ही हैज नॉट डाइवर्सिफाइड हिज कैपिटल, और वो लीवरेज पे काम करता गया। आपके पास जितनी कैपिटल है, कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप पूरी कैपिटल इन्वेस्ट मत कीजिए। 2 ट्रेड या 3 ट्रेड्स में आप पुटअप करके, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, खैर आज के मार्केट में तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बचे ही नहीं है, जो बचे हैं वो बाय डिफॉल्ट बचे हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि साहब शेयर ले लिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो अब क्या हो गया, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो गए हैं। कोई भी पूछता है साहब आप ट्रेडिंग, सर हम तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं आएगा। DLF का 1200 आज तक किसी ने नहीं देखा। 1200 के बहुत क्लाइंट होंगे, शायद यहाँ पे भी 1-2 लोग होंगे जिन्होंने 1200-1100 रुपए में DLF लेके बैठे हैं, वो लॉन्ग टर्म ही हो गए हैं वो ट्रेडर। तो लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज नहीं होती मार्केट में। मार्केट में सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग और ट्रेंड एनालिसिस होता है। एक समय पे IT को लोग सेल कर रहे थे, बहुत सेल कर रहे थे कि बिलिंग इनकी नहीं हो रही है, मार्केट श्रिंक हो रहा है, यूरोप मार्केट श्रिंक हो रहा है, TCS ऑल टाइम हाई पे है, HCL ऑल टाइम हाई पे है, इन्फोसिस ऑल टाइम हाई शायद ब्रेक कर गया 1-2 दिन में, या ब्रेक करने वाला है। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं जो हमेशा टर्न होते ट्विस्ट होते रहते हैं। तो आज का मार्केट उसी के लिए है जो बहुत एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करता है। बहुत लोग हैं, आप नहीं ट्रैक करेंगे, कोई और आपके हक का पैसा लेके चले जाएगा मार्केट में से। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने आईज ईयर्स ओपन करके थोड़ा एनालिसिस के साथ किसी एक एडवाइजर के साथ बैठ करके आप ट्रेड करें मार्केट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में लोगों ने बहुत पैसा खोया है, बहुत लोगों ने पैसा खोया। कई बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने एक साथ सेलिंग की, शायद 700-800 रुपए पे लेके रखा होगा, और 200-250 रुपए में ब्लॉक डील हुई थी। बहुत बड़े एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, शायद आप में से कई लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा म्यूचुअल फंड का। 262 रुपए में बहुत बड़ी ब्लॉक डील, 10-12 लाख शेयर की ब्लॉक डील हुई थी जब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के शेयर गिरे थे। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लोग एग्जिट होते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने, इन्वेस्टर ने देखा कि हाँ लॉस है, बुक करिए, एग्जिट हो जाइए। इससे पहले कि ये चीज जीरो हो जाए आप एग्जिट करके उसमें निकल जाइए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर हैं जो इमोशनली प्ले करते हैं मार्केट से। एक बार उन्होंने शेयर ले लिया, उसको बेचेंगे नहीं। क्यों नहीं बेचना? सब लॉस में नहीं बेचना है। अरे लॉस तो ऑलरेडी हो गया है, लॉस में आप बेचेंगे क्या? आप नहीं बेचेंगे तो मार्केट खत्म कर देगा आपको। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड स्ट्रेटेजी आई हैव सीन इन द मार्केट। अगर कोई सबसे बड़ा स्टूपिड है वही ये काम करेगा कि साहब लॉस में शेयर को नहीं बेचना है। मार्केट जो है हमेशा उसको ऐसे सिखा के जाएगा कि वो फिर जिंदगी में कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा। लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लगाइए, बेच के बाहर निकलिए। बिना स्टॉप लॉस के जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है वो मार्केट में लूज करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेटेजी। स्टॉप लॉस लगा के आप काम कीजिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर इक्विटी मार्केट में जिंदा नहीं रहते हैं। दिस इज फॉर द फैक्ट, वेरी वेरी क्लियर फैक्ट। आप सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे मार्केट में ज्यादा समय तक रहना मुश्किल है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल मार्केट में हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अंडरस्टैंडिंग स्टॉप लॉस। मैंने स्टॉप लॉस बहुत टर्म यूज किया, आप में से शायद कई लोग जानते भी होंगे स्टॉप लॉस क्या है, कई लोग नहीं जानते होंगे स्टॉप लॉस क्या है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं आप 6 महीने से और स्टॉप लॉस नहीं जानते हैं तो शायद आप ट्रेडिंग करने लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो खैर, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अपने लॉस को आप स्टॉप करें। आपने कोई शेयर लिया 100 रुपए में, आपका टारगेट है 110 का, ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, टारगेट पे जाता है सब। एवरीबडी वांट्स दैट द स्टॉक शुड रीच टू योर टारगेट्स। बट क्या हो अगर वो शेयर नीचे गिरने लग जाए? चांसेस हैं, 110% चांसेस हैं।
कौन ऐसा इंसान है जो मार्केट में बोल सकता है गारंटेड ये कॉल चलेगी? कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, प्रोबेबिलिटी होती है 90%, 99%, 95%, बट 100% प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉसिबल इन द मार्केट। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने अगर 100 रुपए में कोई चीज लिया, आपने सोच के रखा 97 के नीचे मैं इसको सेल कर दूंगा, 97 पे आया, आई विल सेल दिस पर्टिकुलर शेयर, दिस इज नोन एज अ सिंपल स्टॉप लॉस। नेक्स्ट चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये अंबुजा सीमेंट का हमने सिंपल सा एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे 102 रुपए पे ये शेयर था जब इसने मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया। ये शेयर था 102 रुपए के आसपास, यहाँ पे इसने अपना मूविंग एवरेज क्रॉस किया शेयर ने। उसके बाद ट्रेडर, those trader who has bought this particular share, he kept the moving average line as the stop loss on the closing basis. आप देखें 180 तक जब ये शेयर गया, इस शेयर ने इस मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस ही नहीं किया है, बिल्कुल इसने इसको क्रॉस नहीं किया। तो आप 102 रुपए से 180 रुपए तक स्टॉप लॉस के बेसिस पे आपने पूरा पैसा कमा लिया। नॉर्मली आदमी 100 रुपए में कोई चीज लेता है, 150 रुपए हो गई, बहुत ज्यादा वेट कर लिया, बहुत ज्यादा हो गया 150 रुपए। आदमी 100 रुपए की चीज लेता है, 110 के ऊपर वेट ही नहीं कर पाता है, जितना बड़ा एनालिस्ट हो वो नहीं वेट कर पाता है। बट आप अपने इमोशंस की जगह टेक्निकल्स को जगह लेने दीजिए। आज भारत तो वैसे ही बहुत बड़ा इमोशनल देश है, कुछ लोग इमोशनली बहुत सारी चीजें कहते हैं भारत के लोगों को, बुरा नहीं है इमोशनल होना, बट ये समझना बहुत जरूरी है कहाँ इमोशंस लगाएं, कहाँ टेक्निक लगाएं। आज मार्केट में टेक्निक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस की जगह। सो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और टेक्निक के बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए मार्केट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड एंड डाइवर्सिफाई योर कैपिटल। अपनी कैपिटल को हमेशा 2 से 3 हिस्सों में आप रख के चलिए कि अगर आपने किसी ट्रेड में इन्वेस्ट किया है, वो ट्रेड गलत हो गया, तो दूसरे ट्रेड से आप पैसा कमा लेंगे। एक एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं डीएलएफ 22-23 अगस्त का एक एग्जांपल हमने रैंडम एग्जांपल चूज किया है। एक ट्रेडर ने डीएलएफ में लॉन्ग किया और एक उसी ट्रेडर ने टाटा स्टील में भी लॉन्ग किया। डीएलएफ में शेयर गिर गया, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बट टाटा स्टील में जो लॉस उसको डीएलएफ से हुआ वो टाटा स्टील में उसने रिकवर कर लिया लॉस। दिस इज हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन divide your capital into 2 particular trades and earn in the markets. On the next slide, which trades? Next slide simply states that you should not carry your loss trade. So whenever आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं हिंदुस्तान लीवर करके एक शेयर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कि ये ऑलमोस्ट 500 रुपए पे है, गैप अप ओपनिंग हुई अगले दिन। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर ने ये देखा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे डबल टॉप बन रहा है, मैं शॉर्ट कर दूं इस शेयर को उठा करके, और अगले दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। सो आपको अगर कोई लॉस हो रहा है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, अगले दिन तक अवॉइड कीजिए कि आप कैरी फॉरवर्ड करें। अगर कोई शेयर में लॉस हो रहा है, आप जब तक अनटिल अनलेस आप बहुत श्योर हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो 5 लॉट में से 4 को स्क्वायर ऑफ करके एक में ही आप कैरी फॉरवर्ड करें विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, एज यू कैन सी, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक शेयर है, मूविंग एवरेज निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं आप, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ नीचे की तरफ, RSI 50 के नीचे गया, आपने सेल कर लिया, अगेन वही मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस हुआ, RSI 50 के ऊपर गया, आपने बाय कर लिया। बहुत सिंपल टेक्निक है। हु सेज यू नीड रॉकेट साइंस टू अर्न इन द मार्केट? टेक्निकल एनालिसिस आपके पास है, आप कमाइए पैसा मार्केट। तो ये हम निफ्टी का करंट मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं। आप देख सकते हैं करंटली मार्केट में निफ्टी में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेकलाइन ब्रेकअप हुआ है अभी निफ्टी में। ऑल्दो इसमें बाइंग सिग्नल बहुत पहले से बन चुका था, बट ये एक पैटर्न है जो बताता है कि शायद थोड़ी बहुत इमीडिएट
इस शेयर में थोड़ी सी बाइंग निकल के आई है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। RSI 50 के ऊपर ब्रेक हुआ है विद अ डबल टॉप ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। निफ्टी करंटली 5697 पे है, विच इज अगेन साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 5700। निफ्टी फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज अगेन अ वेरी साइकोलॉजिकल मार्क ऑन द काउंटर। गोल्ड का चार्ट हम देख रहे हैं, गोल्ड में डबल टॉप फॉर्मेशन के आसपास हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन आप गोल्ड में देख रहे हैं। एक 32,000 के आसपास का सपोर्ट था विच इज ब्रोकन। 14 डे 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे है अभी गोल्ड। MACD में डेली चार्ट्स में ब्रेकडाउन हुआ है, RSI में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया, 50 लेवल मार्क के आसपास अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है। USD INR काउंटर आप देख रहे हैं, अगेन इसमें हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन RSI में ब्रेक हुआ है, 70 के नीचे ये मार्क आया है, 14 डे मूविंग एवरेज के नीचे डबल टॉप फॉर्मेशन में USD INR ब्रेक करके नीचे आया है। So the reason of showing these charts to you is how you can practically see कि market अभी क्या चल रहा है, how you can take up your trades and accordingly you can trade in the markets. So this was a short webinar on how you should trade in the financial markets and how you can technically trade. Now if you have any questions, please आप अपने questions chat के through पूछ सकते हैं, and you can type in your question and send to us. The forum is open for the questions. Thank you. Now we have got a question how to arrive at a stop loss. Fantastic question. There are many ways to arrive at a stop loss. The most easiest way is to use a 7-day or a 14-day moving average. That moving average should be your stop loss and a trailing stop loss also. Again a question, stock market present level. Although this webinar we have not aimed to share the levels, but abhi market is somewhere at 5700 levels. You can always keep a 14-day moving average on the counter and carry on with the trades. Moving average parameters, another question is what are the parameters of moving average? Moving average, you should always keep a 7-day moving average. If you want a very short term, you should always keep a 5-day moving average. Now again a question, how can we decide a level when to buy, when to sell? As we have seen in many charts that simple moving average or a double top, double bottom formation breakout, if there is happening, either side you can buy or sell. But then too you should keep your stop loss because it does not happen that every time you are true. Another questions. The question is that how do we know that we have to buy or sell a share? Again, I'm sharing the same thing. You should rely on the technical analysis. Okay, they want me to repeat the stop loss. Okay, the stop loss should be 7-day and 14-day simple moving average stop loss. बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही शेयर क्यों बढ़ता है या घटता है? हमेशा ऐसा होता है कि साहब हम तो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं अगर शेयर बढ़ रहा है घट रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और शेयर उसको हमेशा क्रॉस करके जा रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं गलती है, आप स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर स्टॉप लॉस हिट होकर के भी जा रहा है तो जो होने दीजिए, 10 में से 3 बार ऐसा होगा कि आपकी कॉल गलत होगी फॉर श्योर। 7 बार अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं, तो आप सही जाएंगे। स्ट्रेटेजी ऑन शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग की यही स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर में आप ट्रेड करें और शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। पेट्रोनेट LNG, सर सॉरी हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं एडवाइस कर पाएंगे। विच साइड बेस्ट टू सी मूविंग एवरेज प्राइसेस? NSE इंडिया पे भी आप देख सकते हैं, iCharts.in बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे आप जाकर के देख सकते हैं। ओके
An attendee wants me to explain the double top formation again. So let me see if I can go there again. There was again a double top formation in the USD INR. So as you all can see, this is the double top formation. One of your attendees wants to explain me again. So all those who know this can skip this particular thing. Double top formation is the place where a stock is forming a top more than once. टॉप फॉर्म का मतलब ये होता है कि टॉप फॉर्म करने के बाद दो कैंडल नीचे की बनी है या मार्केट 1 या 2% नीचे आया अपने काउंटर से. क्रॉस ओवर का मतलब ये होता है उस लाइन के ऊपर जाना. निफ्टी आप जैसे यहां पे चार्ट में देख रहे हैं कि ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस हुआ है. ऑल्सो लेट मी शेयर, आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है, वी आर वेरी मच ओपन ऑन द फेसबुक. You can get the Facebook link also. I'll also share my Facebook link with you, with everybody. Let me share it now. I'll be taking 1 minute, a bit pause to share my Facebook link, so anybody who has a question can come to my Facebook link and they can have their questions answered. This is our Facebook link. So, I mean, anybody after this webinar also, if you have any questions, do join us on Facebook and we can answer your queries. How to identify trend reversals? Very, very simple. A trend reversal is when the moving average, 14-day moving average breaks either side, there is a trend reversal. Okay. Very good question, although the question is for mutual funds. They did a SIP 10 months back, but still they are making a loss in the market. Very, very important thing. If you do an SIP, you should never put, firstly, you should know that this SIP is for what. If this SIP is for retirement planning 20 years from now, do not worry on the markets. Market would fall. Market जितना गिर रहा है उसमें SIP में बढ़ाते जाएं. क्योंकि आज मार्केट नहीं बढ़ रहा है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप पिछले 18 साल का या पिछले 20 साल का आप एग्जांपल देखिए, निफ्टी 17% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है. दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज व्हाट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है. सो 17% ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग एवरेज बहुत ज्यादा हो जाता है. सो कीप इन्वेस्टिंग इन दी SIP. सेकेंड पॉइंट, यू शुड नॉट इन्वेस्ट ऑलवेज इन इक्विटी SIP. अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, 3 साल 5 साल का गोल है, आप बैलेंस फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए. आप यू कैन गो टू दी मे बी अ डेट फंड ऑल्सो. Another question is on what basis the stocks open higher the next day. This is known as gap up opening or gap down opening. When the first trade in the market is higher, it is the higher opening. Okay. Another question, can I do double selling in the when the stop loss hits? Ideally, you should not do double selling. In fact, you should wait for the stock to move consistently or convincingly move below the stop loss or the moving average is hit. So if your stop loss and the moving average is coinciding, you should wait for maybe 1 or 0.5% or some more percent. I'm talking about the daily trading, and then you can do a double selling. Any trader, okay, there is a trader who has not put the stop loss, who missed the stop loss, as many of the investors do. Any strategy? Sir, the only strategy, if you should trade in the stock. Let's say you have bought a share at 1200 rupees, DLF आपने लेके रखा है with 200-250, I don't know the current rate. I'm guessing it is 200 to 50 rupees.
200-250 रुपए पे शेयर है, आपने 1000 शेयर ले रखे हैं, 800 शेयर या 500 शेयर में आप जॉबिंग करते जाइए। बहुत ऊपर बढ़ गया आपने थोड़े से शेयर, उसमें एक रिस्क होती है साहब, शेयर अगर छूट गया आपका तो छूट जाता है वो। 1000 शेयर है तो 300 शेयर में आप जॉबिंग करते रहिए। बहुत ऊपर चढ़ा गया, RSI 70 के ऊपर आ गया, 80 के ऊपर आ गया, आपने 300 शेयर बेच दिए 250 रुपए में, 220 आया फिर 300 शेयर खरीद लिया। ऐसे करके आप पैसा कमा सकते हैं आपका। अगर आपको लगता है कि आपने जिस शेयर में लिया वो गिरते ही जा रहा है, बेच के एग्जिट हो जाइए, उसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नथिंग नोन एज बेस्ट टाइम फ्रेम, देयर इज एवरीथिंग नोन एज ब्रेकआउट। एक क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। आई डो नॉट बिलीव इन टाइम फ्रेम, मैं इस चीज पे काम नहीं करता हूँ कि कोई टाइम फ्रेम होता है। कई बार ऐसा होता है कि देयर इज अ क्वेश्चन कि आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें। ऑप्शंस में the whole idea of trading in options is when you want to minimize your strategy। तो अगर आप बुलिश हैं कॉल बाय कीजिए, बेयरिश हैं सेल आप पुट बाय कीजिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, उसके ऊपर विल बी टेकिंग अ वेबिनार इन दी नेक्स्ट मंथ आल्सो, मे बी लास्ट सैटरडे ऑफ दिस मंथ। So you can all join us on the Facebook also. We update our regular events on the Facebook. For a new investor, he should always keep his stop loss active, always trail the stop loss, never put all his money in the markets. What is strategy for long term investing? सर अभी तो हम शॉर्ट टर्म की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, डिविडेंड पेइंग शेयर्स में जाइए। बहुत सारे शेयर्स हैं, ONGC, BPCL, इलाहाबाद बैंक, देयर आर मेनी शेयर जो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, डिविडेंड पेइंग करते हैं, 5 से 6% डिविडेंड यील्ड है, शेयर गिरते भी कम है, लॉन्ग टर्म आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन वी डू एवरेजिंग एंड स्टॉप लॉस? आइडियली यू शुड नॉट डू। So I hope there are no more questions, and we'll be keep doing these webinars time and again, and we'll be posting this on our Facebook page. So I guess everybody has the Facebook address. You can also visit the Facebook page, and you can be keep updated on our daily events. So thanks all for coming and attending this webinar, and hope you make money in the markets. Happy trading. Thank you.